Hello, students. Good afternoon. Here I am going to speak the story of Robinson Crusoe. Actually, I was told by students that as Robinson takes number of voyages in his life, so it's little bit confusing that what happened in first voyage and second voyage and so on. So here I'm trying to tell you serial wise, sequence wise, what happened in Robinson's life. But before proceeding, I would like to speak on the character Robinson Crusoe. I have taught this novel, and students, many a time, students used to tell that it's not much interesting because it does not happen in real life. How one survival can live alone in an isolated island and all. So I would like to tell you that theory says that Daniel Defoe had taken this idea from the Navy officer Alexander Selkirk. It is said that Alexander Selkirk was a Scottish privateer and a Royal Navy officer, and he spent 4 years and 4 months as a castaway. And this plot had taken from his life. But before proceeding, I would like to connect this novel, that how it is believable that how one person can be survivor. Recently, uh, Vishwas Kumar Ravesh, you know that he was the only survivor to have walked away alive when the London bound Boeing 787 Dreamliner came down second after the takes off from Ahmedabad, right? So Vishwas Kumar Ramesh, he is the only survivor. And it is really unbelievable when plane was crashed and he was walking and he was uh, coming from the flight. So it's really unbelievable. Second incident of Sunita Williams. You all know that Sunita Williams, and then the she has she had to live in space, right, for 9 months. And it is also Sunita Williams and Butch Wilmore, right? So then they had gone just for 8 months, but then they spent much time in 9 months, right? They had spent in the space. So Sunita Williams and Butch Wilmore, right? And that is a tale. That is not normal story, right? So originally this their plan was just 8 day test flight, and then uh, unfortunately or fortunately they ended up spending nearly 9 months aboard the International Space Center. So this is also very much unbelievable. Now come to the Robinson Crusoe's life, right? So that is now I would like to invite start with Robinson Crusoe. So you all know that Robinson Crusoe, the protagonist of Daniel Defoe's famous novel, begins his adventurous life with a rebellious streak against his father's wishes and desire for sea. रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसी नॉवल है जिसको जब मैंने बिगनिंग में पढ़ाया तो बच्चे बिल्कुल अग्री नहीं करते थे, एंड दे डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट. They said that no madam, this is not interesting novel because uh, they say that
this novel is somewhat uh, is just imagination. But then recently two incident happened, I told you, विश्वास कुमार रमेश, जो अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई, उसमें वो ही वॉज द ओनली सर्वाइवर, विच वॉज रियली अनबिलीवेबल. And second incident is Sunita Williams and Butch Wilmore. So that is somewhat luck and mindset. So with this idea, we are going to discuss Robinson Crusoe, right? So I told you that Robinson Crusoe एक ऐसा नॉवल है जो एक एडवेंचरस नॉवल है, जिसमें एक बच्चा रॉबिन्सन रिबेलियस टाइप का बच्चा है जो अपने फादर की विशेस को साइडलाइन करता है और निकल जाता है वॉयज के लिए. तो थेरी लाइक टेक्स्ट सेज दैट रॉबिन्सन is born in York in 1632, and Crusoe defies his father's desire for him to pursue a law career. उसके फादर एक मर्चेंट है एंड ही इज़ वेल सेटल, एंड ही सेड ही सजेस्ट नॉट टू टेक रिस्क बिकॉज फादर हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट टू सन्स. इससे बड़े जो लड़के उनके सन्स थे वो ऑलरेडी दे डाइड. So that father suggests Robinson not to go there, but Robinson could not follow his advice, right? And उसकी जो intense feeling है, and then he instead of father suggests that you should pursue law career instead of embarks on a series of sea voyages. But he sidelines his father's wish and he leaves for the voyage. अब हम यहाँ से देखेंगे क्या होता है. First is that starting is Robinson Crusoe, a young man from York, feels a strong desire to go to sea against father's wishes. तो उसकी डिज़ायर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने फादर की विशेस के अगेंस्ट वो चला जाता है. हाउएवर फादर ही वाज सजेस्टेड टू कंटिन्यू विद लॉ एडवोकेट. यू शुड बिकम एडवोकेट बट एंड लिव अ सिक्योर्ड लाइफ, ऐसा बोलते हैं फादर, पर वो मानता नहीं है. एंड फाइनली क्या डिसीजन लेता है वो? ही टेक्स डिसीजन एंड obey his father and live comfortable middle class life or follow his adventurous spirit. तो अब उसको डिसीजन लेना है बिकॉज ही एडवाइस टू लिव कंफर्टेबल लाइफ, जैसा एक मिडिल क्लास लोग जीते हैं, पर वो समझ नहीं पाता कि आई हैव टू गो फॉर एडवेंचरस लाइफ. सो फाइनली ही लीव्स होम एंड सेल्स टू लंदन. अब वो घर छोड़कर चला जाता है और बताता नहीं है पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को लेकर जाता है और फर्स्ट वॉयज के लिए निकल पड़ता है. नाउ सो दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट हैपन इन हिज लाइफ, राइट? नाउ अर्ली वॉयजेस, दिस इज़ द सेकेंड वन. क्या होता है इसमें? फर्स्ट वॉयज इज डिज़ास्टर. पहला ही उसका एक्सपीरियंस बहुत डैमेजिंग होता है बिकॉज हिज शिप इज़ wrecked, क्योंकि उसकी शिप डैमेज हो जाती है. तो फर्स्ट तो उसका जो फ्रेंड होता है, इस फ्रेंड ही कम्स बैक, ही गोज़ बैक टू हिज होम एंड ही एडवाइसेस रॉबिन्सन एज वेल टू कम विथ मी टू गो बैक टू योर होम, बट ही डिनाइज. रॉबिन्सन मानता नहीं है, कहता है नहीं, मैं तो आई विल गो, आई विल टेक अनदर वॉयज. अब वो क्या करता है? सेकेंड वॉयज लेता है. इस बार वो अफ्रीका जाता है. फर्स्ट वॉयज में ही गोज़ टू लंदन, नोट डाउन, राइट? फर्स्ट वॉयज ही टेक्स फॉर लंदन. सेकेंड वन इज़ अफ्रीका. इज़ मोर सक्सेसफुल. फर्स्ट इज़ डैमेज, शिपरेक्ड हो जाता है. सेकेंड वन इज़ मोर सक्सेसफुल एंड ही बिकम्स प्रॉस्परस ट्रेडर.
तो वो अफ्रीका में जाता है और बड़ा उसको बिजनेस मिल जाता है, एंड स्टार्ट बिजनेस ऑफ प्लांटेशन, एंड ही गेट्स सक्सेस इन इट। उसको बहुत सक्सेस मिलती है। अब क्या होता है कि ऑन हिज थर्ड वॉयज, अब ये थर्ड वॉयज लेता है, हिज शिप इज अटैक्ड बाय पायरेट्स। तो उसकी थर्ड वॉयज में पायरेट उसकी शिप को में अटैक करते हैं, एंड ही इज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड, और ये इसको स्लेव बना लेते हैं। और भी लोगों को बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो दिस द थर्ड वॉयज, राइट। नाउ अब वो स्लेव है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रूसो स्पेंड्स 2 years एज अ स्लेव इन नॉर्थ अफ्रीका। वो अफ्रीका जा रहा होता है। तो हमने अभी देखा था कि वो अफ्रीका जाता है ना। थर्ड वॉयज ही टेक्स फॉर अफ्रीका। तो यहाँ सेकेंड वॉयज में वो जाता है, और फिर थर्ड वॉयज हिज शिप इज़ अटैक्ड, और फिर वो सेकेंड वॉयज टू अफ्रीका इज़ मोर सक्सेसफुल, और थर्ड में भी वो अफ्रीका जा रहा है। तो जब वो जाता है तो वहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में इसको क्रूसो स्पेंड्स 2 years एज अ स्लेव इन नॉर्थ अफ्रीका। तो वहाँ पे उसको बंधक बना लिया जाता है, और वो नॉर्थ अफ्रीका में 2 years के लिए ही बिकम्स स्लेव फॉर 2 years, राइट। इस तरह से होता है। फिर he manages to escape with a young slave boy named जूरी। ये याद रखिएगा। तो वो कैसे भी कोशिश करता है, क्विक है, और बहुत ज़्यादा ही हैज़ लॉन्गिंग टू गो टू अनदर वॉयज। तो एनी हाउ ही मैनेजेस, एंड ही टेक्स हेल्प फ्रॉम जूरी। ये एक यंग स्लेव बॉय है जो उसके साथ है, और भाग जाता है उसको लेकर। दे आर रेस्क्यूड बाय पोर्चुगीज कैप्टन। तो ये जा रहे होते हैं एक बोट में, तो इनको एक शिप देख लेती है, और तन उसमें जो उसका जो पोर्चुगीज कैप्टन है वो रॉबिन्सन को आइडेंटिफाई करता है, एक्नॉलेज करता है। ही अंडरस्टैंड दैट रॉबिन्सन हैज़ समथिंग, एंड देन ही हेल्प्स टू रेस्क्यू रॉबिन्सन एंड जूरी, और इस तरह से ये बच जाते हैं। अब क्या होता है, लाइफ इन ब्राज़ील। अब क्या होता है नया, क्रूसो इज टेकन टू ब्राज़ील। वो नॉर्थ अफ्रीका से ब्राज़ील में आ गया, एंड स्टार्ट्स प्लांटेशन। वहाँ पर ये प्लांटेशन करता है ब्राज़ील में। तो क्या डिसीजन लेता है, कंटिन्यू बिल्डिंग हिज लाइफ इन ब्राज़ील। अब वो सोचता है और मेक अनदर वॉयज टू अफ्रीका टू गेट मोर स्लेव्स फॉर हिज प्लांटेशन। तो वो सोचता है कि शुड आई कंटिन्यू दिस सक्सेसफुल लाइफ, और शुड आई ब्रिंग सम स्लेव फ्रॉम अफ्रीका। तो मैं क्या वो ले आऊँ उनको जाकर, जो मेरे प्लांटेशन में हेल्प करे। तो ही डिसाइड्स टू गो टू अनदर वॉयज। अब वो चौथी बार शिप में बैठता है, राइट, और अफ्रीका जा रहा होता है। यहाँ पे फिर उसके साथ शिप ब्रेक होती है, और अ फियर्स स्टॉर्म हिट्स देयर शिप। तो वो जो एक बहुत तेज तूफान आता है, आप टाइटन इमेजिन कर सकते हो, तो वो इनकी शिप को हिट करता है, और क्रूस, तो यहाँ से इसकी लाइफ चेंज होती है। एंड क्रूसो इज द सोल सर्वाइवर ऑफ द शिप रेक, वॉशिंग अप ऑन द अननोन आइलैंड। और ये बह के कहाँ पर चला जाता है, एक अननोन आइलैंड में चला जाता है। अब वहाँ पे क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ये स्टोरी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या होता है, क्रूसो स्लेव सप्लाइज फ्रॉम द रेग्ड शिप। तो क्या करता है ये क्रूसो, सॉरी, सैल्वेजेस सप्लाइज फ्रॉम द रेग्ड शिप, है ना। तो वो क्या करता है कि वहाँ से सामान उठा कर लाता है, जो भी बच जाता है उसको लेकर आता है वो, और उसमें से जो भी माने जो बचा हुआ सामान है, तो उसको वो
उसको बचा कर ले आता है। तो ही क्रूसो सैल्वेजेस सप्लाईज फ्रॉम द wreck ship, जो जो भी बचा हुआ सामान है वो ले आता है। ही फाइंड्स अ सूटेबल लोकेशन एंड बिल्ड्स अ शेल्टर, हिज फोर्ट्रेस। एक तरह से वो अपना किला बनाता है एक वहाँ पे आइलैंड में जहाँ ये अकेला रह रहा है अब, तो वहाँ एक सूटेबल जगह ढूंढता है और वहाँ पे वो अपना किला बनाता है। अब क्या होता है, ही स्टार्ट्स अ मेटिकुलस रूटीन। तो वहाँ पे वो अपना एक बहुत अच्छा रूटीन शुरू करता है। क्या क्या करता है उसमें, वो वहाँ पे क्या करता है, फार्मिंग करता है, गोट्स को पालना शुरू करता है दो पर्पस से, मीट और मिल्क के लिए। पॉटरी बनाना सीख जाता है, फर्नीचर बनाता है, क्लोथिंग अपने लिए कपड़े जुटाने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है कि वो स्किन पहनता है ना, एनिमल्स का डेड स्किन पहनता है। एंड कीपिंग अ जर्नल, और रिकॉर्ड रखता है कि क्या क्या हुआ है अभी तक। तो इस तरह से वो क्या करता है कि इस तरह से वो अपना सारा सामान रखता है और धीरे धीरे रिटन रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, ही फाइंड्स अ फुटप्रिंट। तो ये सब उसकी लाइफ अब नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसको कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं इन द सैंड। वो घूम रहा होता है शाम को अपने अपने फोर्ट्रेस में, अपने घर के आसपास, अकेला तो रहता है वो, तो उसको कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। रियलाइजिंग ही इज़ नॉट अलोन, तब उसको लगता है कि नहीं, मैं आइलैंड में अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं। तो ही डिस्कवर्स अ ग्रुप ऑफ कैनिबल्स, है ना, द पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बीइंग। तो उसको कुछ ग्रुप समझ में आते हैं, हु ओकेजनली विजिट द आइलैंड। तो इतने दिन में वो नोटिस करता है कि कैनिबल्स टाइम टू टाइम आइलैंड में विजिट करते हैं। तो क्या हो जाता है, तो अब यहाँ पे एक और इसके साथ इंसिडेंट होता है, द अराइवल ऑफ मैन फ्राइडे। तो एक आदमी से ये मिलता है जिसका नाम फ्राइडे है ना। तो क्रूसो सीज द कैनिबल्स प्रिपेयरिंग टू सेक्रीफाइस अ प्रिजनर। तो वो एक, अब वो समझ तो जाता है, डर जाता है, वो इमीडिएट जाके अपने केव में छुप जाता है। लेकिन फिर किसी भी तरह नहीं, हाउ ही रिवाइव्ड हिमसेल्फ, उसको लगता है कि नहीं, आई हैव टू फेस, आई कैन नॉट एस्केप द रियलिटी। तो फिर वो फिर शाम को घूमता रहता है। तो वो देखता है कि कैनिबल्स प्रिपेयरिंग टू सेक्रीफाइस अ प्रिजनर, कि कैनिबल्स प्रिजनर को मार के खाना चाहते हैं, या जो भी कुछ कर इस तरह को उसको मारना चाहते हैं। तो वो डिसीजन लेता है, ही इंटरवेन एंड रिस्क हिज ओन लाइफ। तो वो उनसे भिड़ लेता है, किससे, कैनिमल्स से लड़ाई करने लगता है, और स्टे हिडन एंड सेफ, और झगड़ा करके और एक जगह छुप जाता है। तो उसको लगता है कि मैं रिस्क लूँ या तो मैं फेस करूँ। तो पहले तो वो छुप जाता है, लेकिन अब नहीं छुपता वो। एंड ही रेस्क्यूज, तो वो उनसे लड़ाई करता है कैनिबल से, और किससे, फ्राइडे को बचाकर ले आता है। वो जो प्रिजनर का नाम है वो फ्राइडे है, उसको बचाकर ले आता है। अब क्या होता है कि ये फ्राइडे के साथ आइलैंड में है, उसका दोस्त बन गया फ्राइडे। वो उसको फ्राइडे को मिलता है, इसलिए उसका नाम वो फ्राइडे रख देता है। तो क्रूसो क्या करता है, टीचर्स फ्राइडे इंग्लिश। सबसे पहले तो उसको इंग्लिश सिखाता है, एंड दे बिकम कंपेनियन। अब वो एक अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। फ्राइडेज फादर एंड अ स्पेनिश सेलर आर रेस्क्यूड फ्रॉम अ सेपरेट ग्रुप ऑफ कैनिबल्स। एक और इंसिडेंट होता है उनकी लाइफ में कि फ्राइडे के फादर और एक और सेलर जो स्पेनिश सेलर है, फिर कभी दूसरा ग्रुप कैनिबल्स का आता है, जो जिससे फ्राइडे के फादर को और स्पेनिश टेलर को कौन मिलकर बचाता है, फ्राइडे और रॉबिन्सन, ये उनको बचाकर ले आते हैं। अब द ग्रुप ऑफ 4 प्लान्स एन एस्केप। तो अब 4 लोग हो गए,
रॉबिन्सन, फ्राइडे, है ना, रॉबिन्सन के फादर, राइट, और एक स्पेनिश सेलर। इस तरह से 4 लोग सोच रहे हैं कि अब इस आइलैंड से कैसे जाया जाए, क्योंकि कैनिबल्स का भी डर है और लंबे समय तक रहना इट्स नॉट गुड थिंग। तो क्या होता है कि एक इंग्लिश शिप आती है वहाँ पे। क्या होता है वो, बट इट्स अ म्यूटिनी। तो वो जो इंग्लिश शिप आई है वो इनको इनको समझ में नहीं आता, और ये इंग्लिश शिप को अ, तो ये क्या होता है कि बट इट इज़ अ म्यूटिनी। तो वो आती है और यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि वो जो है वो उन सेजर्स का ग्रुप है जो विद्रोही है उसमें एक्चुअली। तो उसमें द कैप्टन एंड अ फ्यू लॉयल क्रू मेंबर्स आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव। तो वो जो उनका विद्रोह करने लगते हैं वो होती है ये शिप। तो उसका जो कैप्टन और फ्यू लॉयल क्रू मेंबर्स आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव। तो वो जब विद्रोह करते हैं तो उनको बंधक बना लिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये डिसीजन लेता है, हेल्प द कैप्टन रीगेन हिज शिप और स्टे हिडन और होप दे लीव। फिर डिसीजन लेने में कंफ्यूज होता है कि शुड आई हेल्प टू द कैप्टन टू रीगेन हिज शिप, और स्टे हिडन, मैं चुपचाप छुप जाऊं, एंड होप दे लीव, कि मैं उनको जाने दूं। ये चारों ऐसा सोच रहे हैं। फिर क्रूसो, फ्राइडे एंड द अदर्स हेल्प द कैप्टन। तो ये सब मिलके कैप्टन की हेल्प करते हैं, एंड प्रिटेंडिंग टू बी द आइलैंड्स गवर्नर। और ऐसा ऐसा शो करते हैं कि ये आइलैंड के गवर्नर एंड हिज सब्जेक्ट्स, कि रॉबिन्सन आइलैंड का गवर्नर है और ये उसकी प्रजा है। एंड दे सक्सेसफुली रीटेक द शिप। तो वो शिप में जो विद्रोही थे उनसे ये अपने आप को उन सबको बचा लेते हैं। अब अब क्या होता है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब क्रूसो फाइनली लीव्स द आइलैंड आफ्टर 28 ईयर्स। और फिर क्रूसो 28 साल बाद ये डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझ में ऐसे लंबे समय तक आई कैन नॉट लिव। सो 28 साल बाद अब वो वापस चला जाता है आइलैंड से, और ही रिटर्न्स टू द इंग्लैंड वेयर ही लर्न्स हिज प्लांटेशन इन ब्राज़ील। तो वो पहले इंग्लैंड जाता है, फिर जहाँ पर उसने प्लांटेशन, तो वहाँ उसको पता चलता है कि उसका जो ब्राज़ील में प्लांटेशन है वो बहुत सक्सेसफुल है और खूब पैसा कमा रहे हैं लोग। तो फिर वो एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी पोर्चुगीज़ कैप्टन की वाइफ जो विडो होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आता है। तो वो बहुत लॉयल है और वो रॉबिन्सन को बताती है कि यस योर बिजनेस हैज़ बीन फ्लोरिश्ड लाइक एनीथिंग। तो फिर वो अच्छा पैसा कमाता है और फिर वो सबको देता है। इसी बीच में उसकी शादी भी हो जाती है और उसको बच्चे भी हो जाते हैं। फाइनली क्रूसो जो है वो राइट्स हिज मेमोयर्स रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज जर्नी एंड प्रोविडेंस दैट गाइडेड हिम। ही एंड्स हिज डेज एट पीस एंड अ चेंज मैन। और फाइनली फिर वो अपनी लाइफ के बारे में लिखता है और शांति से रहता है और एक completely चेंज पर्सन बन के रहता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट रॉबिन्सन क्रूसोज, his Crusoe's summary, or we can say that timeline in his life, right? So thank you so much. God